Good afternoon, dear student. Myself, Ms. Megha Parashar from SIRT SP Bhopal. Now we start today's topic, quality control test for tablets. Um, in general appearance, size, shape, and thickness. This is important to facilitate packaging and to decide which tablet compressing machine to use. Introduction: tablets are a solid dosage form of medicaments with or without excipients, which are prepared via compression or molding methods and intended for oral administration. For local and systemic effects, they may vary in its size, shape, and weight depending on medicaments and its modes of administrations. Where there is a need to perform quality control tests for tablets to ensure safety, potency, efficacy, stability, patient acceptability, and patient compliance of tablets. Check whether pharmaceutical tablet satisfying certain standards to claim it to be a quality drug or not. To check that the quality parameters are within the acceptance limits or not. What is quality control? Quality control is a small part of QA. QA means quality assurance, and it is concerned with the sampling, testing, and documentation during manufacturing and also after completion of manufacturing. Means during manufacturing and after completion of product, means finished product. It is the monitoring process all times during process, during preparation, and in finished product, through which manufacturer measures actual quality performance, compares it with standards, and find out the causes of deviation from standard to assure quality product not once but every time. In general terms, quality control refers to a procedure or a set of steps taken during the manufacturing of a product to ensure that it meets requirements and that the product is reproducible. Types of quality control tests. These are the following tests used in quality control of tablets. First is official test and second one is unofficial test. In official test, weight variation test, drug content, disintegration time test, and dissolution test. In unofficial test means thickness, hardness, friability, organoleptic characters. These are the tests of tablets. In organoleptic characters, color, odor, and taste, many pharmaceutical tablets use color as a vital means of rapid identification and consumer acceptance. The color of a product must be uniform within a single tablet. Non-uniformity is referred to as a mottling and hence it leads to a poor quality of products. Mottling means क्या होता है कि जब जो कलर है कलर ऑफ टैबलेट है वो इक्वली नहीं है सारी टैबलेट्स के ऊपर, या जो हमारा पूरा एक जो टैबलेट है उसके ऊपर पूरी इक्वल फॉर्म में कलर नहीं है, पैचेस हैं कलर के या कहीं फेडेड फॉर्म में है, तो उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, जैसे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर नहीं है या फिर टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से हो सकता है, जब हम हीट करते हैं ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये सारे कलर डिफेक्ट होते हैं जिसको हम ओवरकम करते हैं। अगर वो एक्सेप्टेंस कंडीशन में है तो ठीक है, अदरवाइज हम जो लॉट होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। In order, the presence of odor in a batch of tablets could indicate stability problems such as odor of acetic acid in degrading aspirin tablets. However, the presence of odor could be characteristics for the drug, like vitamins, added ingredients, flavoring agents, various flavoring agents used in the tablets for flavor of tablets or dosage form like a film coated tablets. So this also a test for order of tablets. And taste is important in consumer acceptance of specialty chewable tablet.
Weight variation test. According to the USP, weight variation test is done by weighting 20 tablets individually, calculated the average weight and comparing an individual tablet weight to the average weight. In derivation, weight variation is equal to IW, मतलब कि individual weight मतलब अगर हमने 20 tablets ली हैं तो उसमें से एक tablet मतलब each and every tablet का weight होगा 1 by 1 और सारी 20 tablets का weight जो है इंडिविजुअल टैबलेट का वेट अपॉन एवरेज वेट ऑफ 20 टैबलेट का जो एवरेज वेट हमारा निकला है वो अपॉन एवरेज वेट इनटू 100%। तो ऐसे हम जो होता है वेट वेरिएशन निकालते हैं, जो वैल्यूज होती हैं उनको पुट करके एंड परसेंट निकालते हैं। इसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेट वेरिएशन के लिए फ्लो प्रॉपर्टी एंड डिग्री ऑफ सेग्रीगेशन। अगर प्रॉपर हमारा जो मटेरियल है फ्लो उसकी प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है या प्रॉपरली कंटिन्यूस मोड में फ्लो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वेट वेरिएशन के चांसेस रहते हैं और डिग्री ऑफ सेग्रीगेशन के भी चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से वेट वेरिएशन जो है वो होता है। एज पर यूएसपी अगर हम देखें तो 130 और लेस एमजी की जो टैबलेट है उसमें प्लस माइनस 10% जो होता है वेट वेरिएशन आ सकता है। अगर हम 130 से 325 एमजी की टैबलेट देखें तो उसमें प्लस माइनस 7.5% तक कंसिडरेबल है। अगर हम 325 एमजी या उससे ज़्यादा की टैबलेट देखें ग्रेटर देन 324 एमजी तो उसमें प्लस माइनस 5% का वेरिएशन एक्सेप्टेबल कंडीशन में है। मतलब अगर इतना वेरिएशन आ रहा है जब हम टेस्ट कर रहे हैं 10%, 7.5 और 5% अगर इतने एमजी में तो वो एक्सेप्टेबल कंडीशन में, अदरवाइज हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। एज पर आईपी अगर 84 और लेस एमजी की है तो प्लस माइनस 10% हो सकता है, ज्यादा या कम 10% वेट का वेरिएशन हो सकता है। 84 to 250 mg का अगर है तो प्लस माइनस 7.5% हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 250 mg की टैबलेट है तो उसके वेट में वेरिएशन हो सकता है प्लस माइनस 5%। प्लस माइनस मतलब प्लस 5% भी हो सकता है। सपोज दैट हमारा आना चाहिए 20 टैबलेट्स का 1 ग्राम ईच टैबलेट है, 20 टैबलेट्स का 20 ग्राम है तो अगर उसका 5% उसमें 5% अगर प्लस या माइनस किसी भी कंडीशन में आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल कंडीशन में। If we are using 20 tablets, then according to USP, not more than 2 tablets show percent weight variation. मतलब अगर हम 20 टैबलेट्स का हम वेट वेरिएशन टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें 2 टैबलेट्स के वेट से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। और अगर 10 का कर रहे हैं तो उसमें 1% के टैबलेट वेट से वेरिएशन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। वो प्लस में भी हो सकता है और वो माइनस में भी हो सकता है। अगर हम थिकनेस टेस्ट की बात करें तो टैबलेट थिकनेस इज डिटरमाइंड बाय अ डायमीटर ऑफ अ टैबलेट। माइक्रोमीटर एंड वर्नियर कैलिपर जो होता है वो यूज किया जाता है फॉर चेकिंग टैबलेट थिकनेस। थिकनेस शुड बी कंट्रोल्ड विद इन प्लस माइनस 5% वेरिएशन ऑफ अ स्टैंडर्ड वैल्यू। थिकनेस must be controlled for consumer acceptance of the product and to facilitate packaging. इसको फैक्टर इफेक्ट करते हैं साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रॉपर साइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो इसमें वेरिएशन आ सकते हैं। और अगर थिकनेस में वेरिएशन है तो कहीं ना कहीं हमें उसकी पैकेजिंग में भी प्रॉपर पैकेजिंग करने में भी दिक्कत आएगी और कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम होगी। ठीक है। इसके बाद जो कंप्रेशन फोर्स है अगर वो इक्वली नहीं है और बराबर इक्वली नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो थिकनेस में है उसमें वेरिएशन आ सकता है। तो अगर हम यहाँ बात करें माइक्रोमीटर की तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है माइक्रोमीटर। हियर पुट द टैबलेट्स बिटवीन 2 एंगल्स। ये एंगल्स के बीच में हम क्या करते हैं टैबलेट को पुट करते हैं एंड रीड इट थिकनेस बाय स्केल। इसकी ये जो स्केल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस स्केल के थ्रू हम इसकी थिकनेस को मेजर करते हैं। इट इज मेजर इन माइक्रोमीटर। इसको माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं और ये सारे जो पार्ट हैं वो माइक्रोमीटर के पार्ट हैं। फ्रेम है, ये लॉक नट है, यहाँ पर लॉक किया जाता है, ये थिम्बल स्केल है। अब जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी थिम्बल है, ये फिर रैचेट स्पीडर है, ये स्केल है, ये इंडेक्स लाइन है। इस तरीके से एंगल्स हैं, स्पेंडल्स हैं, ये पूरा जो इसके पार्ट्स हैं वो आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो भी हेयर टैबलेट्स इज पुट बिटवीन 2 जॉस ऑफ वर्नियर कैलिपर। 2 जॉस के बीच में हम
वर्नियर कैलिपर के टैबलेट रखते हैं और उसकी थिकनेस ऑफ द टैबलेट्स बाय रीडिंग स्केल, जो हमारा इसमें स्केल दिया गया है, इस स्केल के थ्रू हम देखते हैं। इट मेजर्स इन सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिखाई देता है। ये इंटरनल जॉस है, ये एक्सटर्नल जॉस है, ये लॉकिंग स्क्रू है, एंड ये इंपीरियल स्केल है, ये मैट्रिक स्केल है। ये इंपीरियल एंड ये मैट्रिक स्केल है। डेप्थ मेजरिंग ब्लड है, ये डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए है कि कितनी डेप्थ है टैबलेट की। इस तरीके से जो डायग्राम है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं आपको दिखाया गया है। As per official standard, tablets thickness variation allotted up to ±5% of standard value. Means कि जो thickness है वो 5% प्लस माइनस हो सकती है और वो एक्सेप्टेबल कंडीशन में है। अगर हम हार्डनेस की बात करें तो दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज अ क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, मतलब उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है टैबलेट की वो देखी जाती है। हार्डनेस के लिए हम उसको क्रश करके देखते हैं कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है और कितने प्रेशर पे वो क्रश हो रही है। So tablets require a certain amount of strength or hardness to withstand mechanical shock of handling. जब हम मैकेनिकल शॉक के और हैंडलिंग के दौरान जो भी उसको प्रेशर देते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग में, शिपिंग में, तो जितना कितना कंसीडर कर सकती है वो टैबलेट और ब्रेक नहीं होगी, तो वहाँ हम आप उसका हार्डनेस टेस्ट करते हैं। टैबलेट हार्डनेस has been defined as a force required to break a tablet in diametric compression test. इसमें हम डायमेट्रिक कंप्रेशन टेस्ट में इसमें फोर्स जितना है उसको अप्लाई करके ही उसकी हार्डनेस टेस्ट करते हैं। इसको फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ बाइंडर, अगर बाइंडर का कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है तो टैबलेट ज्यादा हार्ड या कम हार्ड हो सकती है। मॉइस्चर कंटेन, कितना मॉइस्चर कंटेन किया है उसने, इसलिए जो भी हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो अगर इम्प्रॉपर कंडीशन में है, प्रॉपर नहीं लिया है, हमने यूज नहीं किया है, तो वो मॉइस्चर कंटेंट कम या ज्यादा हो सकता है, या ड्राइनेस ऑफ ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रॉपर नहीं है। कंप्रेशन फोर्स हम कितना अप्लाई कर रहे हैं टैबलेट को कंप्रेस करने में, तो ये भी मैटर करता है। तो ये बेसिक फैक्टर हैं जो हार्डनेस को इफेक्ट करते हैं। जो इक्विपमेंट यूज होता है इन दिस टेस्ट, मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर होता है, पीफाइजर हार्डनेस टेस्टर होता है, स्ट्रॉन्ग कॉप हार्डनेस टेस्टर होता है, इरविका हार्डनेस टेस्टर होता है। आउट ऑफ ये सारे इक्विपमेंट के अलावा मॉन्सेटो हार्डनेस टेस्टर एंड पीफाइजर आर कॉमनली यूज्ड होते हैं इसमें डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ टैबलेट को यूज करने के लिए। ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये मॉन्सेटो हार्डनेस टेस्टर है। इसमें आप ये यहाँ पर ये जो जॉ लगी होती है ये फिक्स्ड होती है, यहाँ पर हम टैबलेट रखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद ये जो स्केल लगा हुआ है ये केजी में होता है, ये इंडिकेट करता है कि कितना किलोग्राम वेट हमने इस पे अप्लाई किया और कितने वेट पे जाके ये क्रश्ड हो गई। तो ऐसे करके हम उसकी हार्डनेस टेस्ट करते हैं। ये स्क्रू नॉब है। तो इन हार्डनेस टेस्ट है, टैबलेट इज पुट बिटवीन मूविंग जॉ, ये जो मूविंग जॉ है इसके बीच में हम रखते हैं। ये फिक्स्ड जॉ है, बाहर साइड वाले जो है ये फिक्स्ड है, दिस इज मूविंग जॉ। एंड pressure is applied on tablet by means of screw knob. ये जो screw knob है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके ऊपर pressure apply करते हैं। The point where tablet get break down, जिस point पे जाके tablet break हो रही है, it is recorded by means of a scale. The hardness is measured in kilogram per centimeter square. जो टैबलेट की हार्डनेस है वो हम मेजर्स इन किलोग्राम किस में करते हैं, किलोग्राम, कितना किलोग्राम वेट लगा और ये स्केल ने कितना मूव किया पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं स्क्रू से और स्केल पे किलोग्राम वेट पे हम कितना सेंटीमीटर मूव किया ये हम इस पे देखते हैं। ऐसे करके जो मॉन्सेटो हार्डनेस टेस्टर है वो अप्लाई किया जाता है टैबलेट के लिए। पीफाइजर हार्डनेस टेस्टर जो होता है इसमें हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर टैबलेट रखते हैं। इन पीफाइजर टेस्टर कंप्रेस टैबलेट बिटवीन अ होल्डिंग एंगल, ये जो होल्डिंग एंगल है इनके बीच में हम टैबलेट रखते हैं। एंड अ पिस्टन कनेक्टेड टू अ फोर्स रीडिंग गेज, जो पिस्टन है उसको कनेक्टेड करते हैं किसे, force reading gauge से। and when its plier like handles are gripped, इसमें ये जो हैंडल हैं उनको ग्रिप किया जाता है, ये दोनों को
प्रेस करते हैं आपस में, एंड द पॉइंट वेयर टैबलेट गेट ब्रेक डाउन, जिस पॉइंट पे जाके टैबलेट ब्रेक हो रही है, इट इज नोटेड बाय रीडिंग गैस। जो रीडिंग यहाँ पर ली जाती है, यहाँ पर रीडिंग करके हम इसमें टैबलेट की कितनी हार्डनेस है वो हम देखेंगे। ये हार्डनेस टैबलेट, ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर हार्डनेस की बात करें हम तो 5 to 8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर स्टैंडर्ड कंप्रेस टैबलेट एक्सेप्ट ईफरवेसेंट टैबलेट। मतलब ईफरवेसेंट टैबलेट में ये नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं है डिस्पर्सिबल टैबलेट में, एंड और डिस्पर्सिबल टैबलेट में, एंड च्यूएबल टैबलेट्स में। इन सब टैबलेट को छोड़ के बाकी जो टैबलेट्स होती हैं उसमें 5 to 8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ऑफिशियल स्टैंडर्ड है फॉर हार्डनेस का, एंड मोर देन 8 to 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है फॉर सस्टेन रिलीज टैबलेट एंड अ कंट्रोल रिलीज टैबलेट। इसके लिए है फॉर सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज टैबलेट। एंड फ्राइबिलिटी टेस्ट की बात करें हम तो फ्राइबिलिटी इज द फिनोमेनन where the surface of the tablet is damaged or shown in sight of damage due to mechanical shock। जब mechanical shock apply होते हैं टैबलेट के ऊपर ड्यूरिंग कोटिंग, तो या फिर आप उसको मूव करा रहे हो यहाँ से वहां, तो जो मैकेनिकल शॉक होते हैं उसमें जितना भी टैबलेट का वेट लॉस होता है, कितना वेट लॉस हो रहा है, वो हम फ्राइबिलिटी टेस्ट एपरेटस से देखते हैं। इसका पर्पस जो होता है टू एवेल्यूएट द एबिलिटी ऑफ द टैबलेट to withstand to breakage during the transportation and handling। जब हम उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और उसकी हैंडलिंग कर रहे हैं तो वो कितना स्टैंड है अपनी जो उसका वेट है उस पर कितना स्टैंड है अपनी क्वालिटी के ऊपर, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कितना स्टैंड है। Friability testing जो होते हैं is a method which is employed to determine physical strength of uncoated tablet upon exposure to mechanical shock and attrition. In simple words, friability tests tell how much mechanical stress tablets are able to withstand during their manufacturing, distribution and handling। मीन्स जब हम टैबलेट को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और हैंडलिंग मीन्स जहाँ पर उसको प्रोसेस हो रहा है वहां से पेशेंट तक जाने में जितनी भी हैंडलिंग हो रही है, जितना भी वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वन प्लेस से टू अनदर प्लेस पर, तो उसमें कितना वो स्टैंड है अपने जो स्टेबल है अपने फॉर्म में, और कितना वेट लॉस हो रहा है उसका। इट मीन्स सरफेस erosion by sudden mechanical shock and loss of material from intact tablet, और मटेरियल जो हमारा है वो कितना लॉस हो रहा है। तो हम इसमें ये फ्राइबिलिटी टेस्ट एपरेटस कहलाता है। रॉचे का फ्राइबिलिटी टेस्ट एपरेटस जो है होता है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, जो डिटरमाइन करता है परसेंट ऑफ फ्राइबिलिटी ऑफ टैबलेट्स को। इसमें प्रोसीजर में हम 20 टैबलेट्स लेते हैं एंड टेक इनिशियली वेट ऑफ इट एंड पुट इनटू अ फ्राइबिलेटर। इसमें हम पुट कर देते हैं, ये ओपन हो जाता है, यहाँ से ये स्क्रू है, इसको ओपन करके ये जो बाहर का हिस्सा है ये ओपन हो जाता है, यहाँ पर इस टाइप से नाउ रोटेट द ड्रम एट, और इसके अंदर हम 20 टैबलेट्स जो है उसको प्लेस करते हैं। इसके बाद में वापस इस ढक्कन को लगा के और ये हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद जो होता है ड्रम जो होती है 25 आरपीएम पर मिनट होती है, सो 100 आरपीएम पर 4 मिनट्स, मतलब ये 25 रोटेशन पर मिनट कर रही है। तो अगर हमको 100 रोटेशन पर 100 रोटेशन चाहिए है तो हम इसे 4 मिनट के लिए सेट कर देते हैं। During this tablet gets dropped on plastic from 6 inches, it will pass through mechanical shock। ये पास होती है मैकेनिकल शॉक से जब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर 4 minutes calculated final weight of tablets and that of percent friability। Percent friability can be calculated by following formula, means W1 minus W2 upon W1 into 100। मतलब फर्स्ट इज वेट ऑफ टैबलेट बिफोर टेस्टिंग, मतलब जो 20 टैबलेट्स हमने स्टार्टिंग में ली थी विदाउट, जब हमने उसमें फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए नहीं अप्लाई किया था उसको, तो हमने उसका वेट लिया। दिस इज W1 माइनस W2, मीन्स हमने जब उसको 4 मिनट के लिए 100 रोटेशन पे रखा, तो इसके बाद जो टैबलेट है उसको डिडस्ट करने के बाद जितना उसका वेट आता है, तो इसके बाद जो टैबलेट का वेट आता है वो अपॉन फर्स्ट जो टैबलेट का वेट आया था इनटू 100, इससे हम परसेंट फ्राइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं।
मीन्स मैकेनिकल शॉक के दौरान कितना इसने अपना वेट लॉस किया या मटेरियल लॉस हुआ हमारा इसमें। तो स्टैंडर्ड फॉर फ्राइबिलिटी अगर हम बात करें तो परसेंट फ्राइबिलिटी जो होती है अप टू 0.5 to 1% फॉर ऑल स्टैंडर्ड कंप्रेस टैबलेट। 0.5 से 1% होती है फॉर ऑल स्टैंडर्ड कंप्रेस टैबलेट के लिए। फॉर इफरवेसेंट एंड च्यूएबल एंड whispering or dispersible tablets percent probability should be greater than 1, मतलब 1% से ज्यादा हो सकती है, लेकिन अदर टैबलेट्स के लिए 0.5 to 1% ही रहती है। अगर हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की बात करें तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है इज अ प्रोसेस इन विच टैबलेट्स आर ब्रेक अप इनटू ग्रेन्यूल्स और स्मॉलर पार्टिकल्स। मींस जो टैबलेट है उसकी ग्रेन्यूल्स कितने टाइम में एक स्मॉलर पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, मतलब जो लार्ज पार्टिकल जो लार्ज फॉर्म में है हमारे टैबलेट, वो डिसइंटीग्रेशन टाइम उसको कितना लग रहा है वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में हम निकालते हैं। द टाइम इट टेक अ टैबलेट टू डिसइंटीग्रेशन इज मेजर्ड इन द डिवाइस डिस्क्राइब इन द यूएसपी एंड एनएफएसओ। Disintegration test is a measures of the time required for a group of tablets to break up into particles under a given set of condition। जो सेट ऑफ कंडीशन करते हैं हम उसके अंदर कितना ब्रेक होने में टैबलेट को कितना टाइम लग रहा है। This test is essential for tablet intended for administrations by mouth, except those intended to be chewed before being swallowed, or those they that should dissolve slowly in the mouth। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लूजेंस होते हैं, ग्लीसरीन ट्रिनिट्रेट होते हैं और इफरवेसेंट टैबलेट्स होती हैं। ऑल्सो डिसइंटीग्रेशंस डज नॉट अप्लाई टू सम टाइप ऑफ सस्टेन रिलीज टैबलेट के लिए भी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस है। इसमें टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉल पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस of disintegrating fluid। Disintegrating fluid may be either simulated gastric fluid or a simulated intestinal fluid like। Equipment used in this test, disintegration test apparatus, is commonly used। Two batches of 6 tablets can be simultaneously tested with this instrument। This USP devices to test disintegration uses 6 glass tubes that are 3 inches long। इसमें 2 baskets होती हैं, उनके अंदर 6 baskets होती हैं जो 3 inch long होती हैं and open at the top। यहाँ पर open at the top रहती हैं। यहाँ पर 2 बास्केट्स हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी, ये 1 और ये 2। ये 3 इंचेस की लॉन्ग होती हैं और यहाँ पर 6 रहती हैं ये। और ये ओपन एट द टॉप, मतलब यहाँ से ओपन रहती हैं, टॉप से ओपन रहती हैं। इसके अंदर हम गैस्ट्रिक फ्लूइड जो है वो फिल कर देते हैं और उस 6 जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर हम एक एक टैबलेट फिल कर देते हैं। held against at 10 mesh screen, इसमें 10 mesh screen लगी हुई होती है at the bottom and of basket and rack assembly लगी हुई होती है। each glass tube has a percolated sieve number 10 at the bottom। ठीक है, हर जो ट्यूब है वो परकुलेटेड है 10 नंबर की सीव से। इसमें प्रोसीजर जो होती है टू टेस्ट फॉर डिसइंटीग्रेशन टाइम, 1 टैबलेट इज प्लेस्ड इन ईच ट्यूब, हर एक ट्यूब में एक एक टैबलेट रख दी जाती है। एंड द बास्केट रैक इज पोजीशनड इन अ 1 beaker of water and simulated gastric fluid or simulated intestinal fluid। या तो गैस्ट्रिक फ्लूइड या और इंटेस्टाइनल फ्लूइड से फिल होती है। किस टेम्परेचर पे रखी जाती है? 37 डिग्री टेम्परेचर पे रखी जाती है, +- 2 डिग्री हो सकता है। सच दैट टैबलेट्स रिमेन 2.5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। कितने किस एंगल पे रखना है? 2.5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। 2.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए लिक्विड से बिलो। On their upward movement and descend not closer than 2.5 centimeter from the bottom of the beaker। तो जो स्टैंडर्ड मोटर होता है उसको यूज किया जाता है टू मूव द बास्केट असेंबली एंड कंटेनिंग द टैबलेट्स अप एंड डाउन थ्रू अ डिस्टेंस। इसमें
ये जो टैबलेट की जो असेंबली होती है वो अप और डाउनवर्ड्स में मूव करती है, एंड डिस्टेंस ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 28 to 32 साइकिल्स पर मिनट, जो 28 से 32 साइकिल्स पर मिनट लेती है। और thus in this way not the time required to complete disappearance of tablet from glass tube मीन्स कि जितना भी टाइम उसको पूरा 10 नंबर मैच साइज की जो सीप हमने नीचे रखी है उससे पूरा जितनी भी टाइम लग रहा है उसको उतने में अगर वो पूरा पास कर ले रही है 10 नंबर सीप को, तो वो उसका कहलाएगा डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टैबलेट। अगर हम ऑफिशियल स्टैंडर्ड देखें तो स्टैंडर्ड कंप्रेस टैबलेट में अगर हम आईपी, बीपी और यूएसपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, विट्रिस फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में अगर हम देखें, तो अगर हम जो कंप्रेस टैबलेट का अगर टेस्ट कर रहे हैं जो कि अनकोटेड है, तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम 15 मिनट्स होता है। अगर बीपी में हम देखें तो एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 15 मिनट्स है, और जो यूएसपी है उसमें अगर हम देखें तो 5 मिनट्स है। मीन्स अगर इस टाइम के अकॉर्डिंग है तो कंसिडरेबल है, अदरवाइज रिजेक्टेड है। अगर शुगर कोडेड टैबलेट की बात करें हम तो 60 मिनट लगता है आईपी में, 30 मिनट्स बीपी में एंड यूएसपी में एज पर यूएसपी। फिल्म कोटेड टैबलेट में 30 मिनट्स आईपी में लगता है, 30 मिनट्स बीपी में, 30 मिनट यूएसपी में। एंट्री कोडेड टैबलेट में 1 आवर लगता है आईपी में, 1 to 2 आवर बीपी में एंड यूएसपी में। इफरवेसेंट टैबलेट और डिस्पर्सिबल टैबलेट्स में अगर हम बात करें तो मोर देन 3 मिनट्स लगता है, एंड बीपी में भी 3 मिनट्स एंड मोर देन 3 मिनट्स एंड यूएसबी में भी मोर देन 3 मिनट्स। और डिस्पर्सिबल टैबलेट्स अगर बात करें हम तो 1 मिनट, मोर देन 1 मिनट लगता है। तीनों में आईपी, बीपी, यूएसबी तीनों में मोर देन 1 मिनट जो है वो कंसिडरेबल है। The disintegration time is not for buccal, sublingual and chewable tablets. Disintegration time जो है हम buccal, sublingual and chewable tablet का नहीं टेस्ट करते हैं, because they are the directly absorbed. ये जब ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती हैं क्योंकि ये जीआईडी के थ्रू नहीं हम ले रहे, ठीक है। No disintegration time for sustained release and controlled release tablet. Sustained release and controlled release tablet जो है वो भी उनका डिसइंटीग्रेशन जो है वो टेस्ट है नहीं करते। तो डिसोल्यूशन टेस्ट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग विया ऑरल डोसेज फॉर्म इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ डिलीवरिंग ट्रीटमेंट to patients. When a dosage form is swallowed, the rate at which it releases the active ingredients is critical to ensure that the drug is delivered properly. अगर वो swallowed नहीं होगी तो वो delivered कैसे होगी properly? तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही necessary है, solution test. So the rate at which the drug is released is called the dissolution rate. जो rate released हो रहा है drug के swallowed होने का, that is the dissolution rate. Several dissolution apparatus जो होते हैं वो हम use करते हैं. There are 4 dissolution apparatus standardized and specified जो है dissolution apparatus 1 है जो basket है, and USP dissolution apparatus 2 है जो pedal है जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रखा जाता है। थर्ड वन जो है वो रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर्स का है, एंड फोर्थ वन जो है फ्लो थ्रो सेल थ्रो फ्लो होता है वो भी एट 37 डिग्री टेम्परेचर पे ही रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू आईपी अगर हम बात करें तो पैडल टाइप एपरेटस होता है एंड बास्केट टाइप एपरेटस होता है। देयर आर 2 एपरेटस। इक्विपमेंट यूज इन दिस टेस्ट ये आपको दिखाई दे रहा है, रोटेटिंग बास्केट एपरेटस असेंबली कंसिस्ट ऑफ अ कवर्ड वेसल। कवर्ड वेसल देखिए ये जो बास्केट शाफ्ट है ये सैंपलिंग पॉइंट है जहां पर हम सैंपल रखते हैं, एंड वेसल ये वेसल है एंड ये बास्केट है, ठीक। तो कवर्ड वेसल है, मेटेलिक ड्राइव शाफ्ट है, सिलेंड्रिकल बास्केट है, मोटर है, सैंपल पॉट है, ये एक बास्केट है, राइट। सैंपल पॉट है, वाटर बाथ होल्डिंग टेम्परेचर है, एंड जो कितना टेम्परेचर होल्ड करता है 37, जो प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि हमारा इंटरनल टेम्परेचर इतना ज्यादा अप डाउन नहीं होता है। एसिडिक मीडिया और अल्कलाइन मीडिया है,
करके हम जो है रोटेटिंग बास्केट एपरेटस, इसमें असेंबली जो है उसमें टेस्ट करते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। फिर अगर हम देखें तो रोटेटिंग पैडल एपरेटस है। ये जो पैडल है ये रोटेट करता है। जो हमने बास्केट, रोटेटिंग बास्केट जो फर्स्ट नंबर पे देखा था उसमें बास्केट मूव करती है, यहाँ पर पैडल मूव करता है। कवर्ड वेसल जो है इसमें दी गई है 100 आरपीएम ये करता है। वो क्या है ये आपको दिखाई दे रहा होगा डायमीटर में, ये शिंकर एंड ये टैबलेट है। एंड जो जिसकी जो हाइट है वो 8.5 सेंटीमीटर है। ये 900 ml का वाटर असेंबली है जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, और ये पैडल है, राइट। यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिखाई गया है कि किस तरीके से हम टैबलेट रखते हैं। जो शिंकर है वो ऊपर टैबलेट जो है उसको फ्लोट नहीं होना देता है। तो कवर्ड वेसल जो है मेटेलिक ड्राइव शाफ्ट है, स्टेनलेस स्टील पैडल है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये पैडल। एंड मोटर है, शिंकर टू प्रिवेंट फ्लोटिंग ऑफ टैबलेट। ये जो शिंकर है अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्लोट करने से, अगर टैबलेट ऊपर फ्लोट हो जाएगी तो उसका प्रॉपर डिसोल्यूशन टाइम हमें पता नहीं चलेगा। वाटर बाथ होल्डिंग टेम्परेचर जो कर रहा है वो 37 डिग्री टेम्परेचर है, ±4 0.5% डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। एसिडिक मीडिया और एल्कलाइन मीडिया जो है वो बास्केट का हम रखते हैं। इसमें पैडल मूव करता है। अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो S1 S2 S3 मींस स्टेजेस हैं। जो नंबर ऑफ यूनिट्स, इसमें हम 6 टैबलेट्स का देखते हैं। 6 S1 में, S2 में 6 टैबलेट्स का एंड 12 टैबलेट्स में S3 का। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अगर हम 6 टैबलेट S1 में देखें तो ऑल यूनिट 6 नॉट लेस देन Q + 5%। मतलब क्या होना चाहिए कि नॉट लेस देन 5%, 5% से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम S2 की बात करें तो एवरेज ऑफ 12 टैबलेट्स इक्वल टू और नॉट लेस देन 15% होना चाहिए, ठीक है। अगर S3 की बात करें, अगर हम 12 का टेस्ट कर रहे हैं फिर से 12 टैबलेट्स का, तो एवरेज ऑफ 24 टैबलेट्स इज इक्वल टू और नॉट लेस देन 25% -25% क्यूज लेके होना चाहिए। तो वेयर Q इज इक्वल टू परसेंट ड्रग डिजॉल्व, मतलब कि जो कितना परसेंट ऑफ ड्रग जो है वो डिजॉल्व हुआ है, यहाँ पर हम वो परसेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन में 5%, 15 एंड 25%। तो 75% ऑफ अ ड्रग शुड बी डिजॉल्व विद इन 45 मिनट्स एज पर यूएसपी। अगर हम यूएसपी के अकॉर्डिंग देखें तो 75% जो ड्रग होती है वो डिजॉल्व हो जाती है इन 45 मिनट्स। फिर अगर हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की बात करें, अगर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट वाज डिसॉल्व टू एंश्योर कंटेंट कंसिस्टेंसी ऑफ एक्टिव ड्रग सब्सटेंस। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग कंटेंट, टैबलेट वेट वेरिएशन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जो टैबलेट का वेट वेरिएशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग इन द पाउडर और ग्रेन्यूल्स। अगर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, कहीं कम कहीं ज्यादा है, तो सिग्रीगेशन ऑफ द पाउडर मिक्सचर और ग्रेन्युलेशन ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन प्रोसेस। बाय द यूएसपी सिग्रीगेशन अगर हो रहा है ग्रेन्यूल्स का फॉर्मुलेशन के दौरान, बाय द यूएसपी मेथड 30 टैबलेट्स आर रैंडमली सेलेक्टेड। हम कोई सी भी 30 टैबलेट्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो सैंपल में है वही एक कुछ 30 टैबलेट्स लेंगे, रैंडमली कोई सी भी 30 टैबलेट्स ले सकते हैं। 10 ऑफ दीज टैबलेट्स आर एसिड इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू द मेथड described in the individual monograph. Unless otherwise stated in the monograph, the requirement for content uniformity are met if the amount of active ingredient in 9 of the 10 tablets lies within the range of 85% to 115% of the label claim. The 10th tablet may not contain less than 75% or more than 125% of the labeled drug content. If one or more dosage units do not meet this criteria, the remaining 20 tablets are acid, individual, and non
may fall outside of the 85% to 150% of range for the batch to be accepted. Thank you everyone. Have a nice day.